Okay, so hearty good morning to all of you, and thank you for joining this session. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. And Good morning, sir. good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning. Now let's go ahead. Yeah, I won't be able to answer all good mornings, so kindly take it as read. A hearty good morning to all of you. And I request you to please keep your mics mute and even your videos also not running, so that there won't be any bandwidth or data problem or things like that. My hearty congratulations to you for securing excellent marks. More than that, hearty congratulations to you for securing an admission to engineering and securing admission particularly in PCCOER. As you might be aware that we are among the top 5 colleges in Pune University, and we have started hardly 6-7 years back in 2014. So that is really a creditable achievement for our institute. And we are so happy that you are going to be a part of this institute. You are going to be the future generation which we have the opportunity and honor to nurture and develop. Very briefly about myself, I am Samir Savarkar, head of the Civil Engineering Department. I have done my doctoral from IIT Bombay, and I have been teaching engineering subjects, particularly structural engineering subjects, for last 26 years, that is since 1994. And I love teaching, and I'm looking forward to meeting you, God knows online or offline, but however, I love to teach and I'm certainly eager to teach you. And I will be teaching engineering mechanics to one of the divisions. Okay, माझं भाषण मराठी, हिंदी, English असं थोडं mix असेल. More Hindi or English because we have some out of state students, so they should not feel left out or confused. Yeah, thank you. So, right, let me start with the presentation, and with the help of my slides, I will keep on discussing the points one after the other. And I know that you don't like giving suggestions or advices. Nothing wrong in that, because you are in that phase, you are in such age. I have also been through the same phase, so I know. So I'm not really giving advice, but what I'm suggesting is, these are the things which we have undergone as students of engineering. We failed at times, we could not perform good at times. आपल्या मराठीत एक म्हण आहे, पुढच्या ठेस मागचा शहाणा. तसं थोडंसं असतं की ज्या चुका आम्ही केल्या, जो गलतियां हमने की, हम चाहते हैं कि आप लोग न दोहराए, आपकी जिंदगी, आपकी करियर हमसे भी अच्छी हो, बेहतर हो, इसलिए हम लोग ये सब बातें आपको बताते रहते हैं. So please don't mind if I make a suggestion or give you an advice. So let me start with my presentation. Okay, so I hope you are all able to see the presentation and you are all able to hear my voice. And if there is any technical issue, then kindly unmute your mic and let me know. Otherwise, if you have any questions about my presentation or about our particular subject, studying engineering or how to study engineering, you may please ask me the questions at the end of my presentation. That is an humble request.
So yes, our topic is studying engineering, and about myself, I have already told you, so I will go ahead. Yes, I am starting with a quote by a very famous personality. You must have identified him. That is the karate champion Bruce Lee. And what he has said, don't fear failures. Not failure, but low aim is the crime. In great attempts, it is glorious even to fail. तो आप जो कोशिश कर रहे हो, आपका जो सपना है, तुमचं जे ध्येय आहे, वो इतना बड़ा होना चाहिए, वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप जीतते हैं या हारते हैं, म्हणजे परिणामांची चिंताही करू नका आणि परिणामांवरती लक्षही ठेवू नका. Don't look at the outcome, don't worry about the outcome. Try to do something great. यशाहूनही प्रयत्न सुंदर असं आपण मराठीत म्हणतो. So your efforts should be good, not failure, but low aim is crime. Yes, failing is not crime, but not trying something high, not trying something good is definitely a crime. My dear friends, you are brilliant. You have a lot of potential. You have secured excellent marks in your 12th exam. You have tremendous support of your parents, your teachers. So what is the problem? Why should we aim for something mediocre? We will aim for something great, and we are all going to be someone great, something great. Yes. Yeah, so I start with, first of all, very basic question, what is engineering? आप इंजीनियरिंग को तो आए, पर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? So application or applications of natural sciences. Which are the natural sciences? Physics, chemistry, biology, even mathematics. So applications of natural sciences to real life problems is nothing but engineering. Simple examples, you take any machine, even a simple watch, wall clock, or a tractor, or a car, or a calculator, or any system like water supply in your town. Everywhere you will find that some basic principle from physics or chemistry or even biology and mathematics has been used to convert into a machine or a process, and that is nothing but engineering. Yes, not just a profession, but a personality. So this is a very important statement. When you become an engineer, you know, like a military person, उनका जो रुतबा होता है, उनका जो ऑरा होता है, वो जो ड्रेस है, वो जो डिसिप्लिन है, वो उनकी हर बात में दिखता है. Similarly, it is true for an engineer. When you will complete your engineering, you will be intellectually so matured. You will think logically. Even in very personal problems of life, your way of thinking will be totally different from way of thinking of a common person. So you are becoming engineer as a personality, not just by qualification, not just by profession. Try to realize that you are doing something very great. You are doing something exciting. You are doing something mind-blowing. And the people in the society are going to look up to you. लोग देखेंगे कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो करेंगे हम फॉलो करेंगे. That is very true. So once again, congratulations that you have come for engineering. Tough or simple, आपके दिमाग में जरूर ये चलता रहेगा कि अरे मैंने एडमिशन तो ली, मुझे एडमिशन तो मिल गई, लेकिन कोई बोलता है बहुत डिफिकल्ट है, कोई बोलता है कंप्यूटर्स डिफिकल्ट है, कोई बोलता है सिविल डिफिकल्ट है, कोई और कुछ बोलता है. क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? आर वी नॉट कंफ्यूज्ड विद सो मेनी ओपिनियंस? So let me tell you, as an engineer and as a teacher of engineering for last so many years, engineering is damn easy. Not only easy, but most enjoyable.
And let me tell you, I'm very proud and I'm very happy that I am an engineer. Because whatever I'm telling you are my personal experiences, are not some sentences picked up from Wikipedia and conveyed to you. It's not like that. I'm pouring my heart in my speech, not somebody's text that I have copied and pasted here. No. हाँ, ये image तो मैंने जरूर copy paste की है. This image is from the famous movie Three Idiots, and you might have seen the movie. If you haven't, do watch this movie, क्योंकि ये मूवी का एक बहुत पावरफुल मैसेज है. थ्रू आउट दिस मूवी, फॉरगेट द रोमांटिक एंगल ऑफ आमिर खान एंड शायद करीना कपूर या जो भी है, फॉरगेट दैट पार्ट. दैट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ कमर्शियल मूवी, इसलिए वो लाया है. बट द फोकस ऑफ द मूवी is the message that the Amir Khan's character is trying to give to you. And what is that message? Don't run behind success. Try to be competent. Let the success run behind you. जैसा कि उन्होंने मूवी में कहा है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी. So yes, don't focus upon मुझे कितने क्रेडिट्स लाने हैं या कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे कौन सा पैकेज मिलने वाला है, मुझे कहाँ पे जाना है इसके बाद. नो, योर गोल्स हैव टू बी देयर, नो डाउट. आपके कुछ गोल्स है, आपने कुछ हायर गोल्स सेटअप किए हैं, वो जरूरी है. लेकिन वो गोल्स रीच करने के लिए आप ये भूल जाते हैं कि आपको नॉलेज की जरूरत है. And when you just have set the goals and you are just trying to walk towards the goal, फिर आप असाइनमेंट्स कॉपी करते हो, जर्नल के एक्सपेरिमेंट्स बिना प्रैक्टिकल्स किए कॉपी करते हो, क्योंकि आप नॉलेज पे फोकस नहीं करते, आप गोल पे ही फोकस कर रहे हो. तो ये नहीं होना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूं आपको. सो एंजॉय द जर्नी, नॉट जस्ट डेस्टिनेशन. अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग महाबलेश्वर निकलते हैं या जम्मू कश्मीर निकलते हैं या शिमला कुल्लू मनाली निकलते हैं और वहीं की सोचते हैं. बीच में जो बढ़िया नजारे पड़ते हैं उनको हम अनदेखा कर देते हैं, ये सोचते हुए कि अरे यहाँ क्या देखना है, मुझे तो वहां पहुंचना है. ऐसा नहीं है. आई वॉन्ट यू टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर इंजीनियरिंग, ईच एंड एवरी डे ऑफ इंजीनियरिंग. तो आप डेस्टिनेशन भी बड़ी खुशी से पहुंच जाएंगे और डेस्टिनेशन भी उतना ज्यादा एंजॉय करेंगे. Why are you doing engineering? Ask this question to yourself. Why am I doing engineering? Good job, good money, good salary, good status in society, to have a professionalification. कि मैं अपना शुरू कर कंसल्ट का कुछ हो, पेरेंट बोलो कि इसके पास क्वेश्चन होना है, तुमको कहीं पे जाना है तो कुछ डिग्री की जो टीचिंग से रहा था, कुछ दूसरी एंजॉय. आई से सच सेल्फ, बट as far as professional opinion is concerned, I could do it easily. Let me say, मेरे लिए डायरेक्शन करना, एडिटिंग करना, इवन मेकअप करना, कुछ इवन लाइटिंग करना कुछ बड़ी बात नहीं रही थी. क्योंकि जब भी वो लोग एक्सपीरियंस लोग, वहां के स्किल्ड लोग काम करते थे, तो मुझे वो लॉजिक समझ में आ रहा था कि ये लाइट यहाँ पे क्यों रखा है, ये बैकलाइट क्यों दिया है, ये मेकअप में ऐसी शेड क्यों लाते हैं. I could realize the things just by observation and of course by asking a few questions. ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो मेरी मैच्योरिटी उतनी बढ़ गई थी. और ये आपके साथ भी होना है, होने वाला ही है. सो अगर आपको अभी ऐसे थोड़ा सा लग भी रहा है कि अरे मुझे कुछ दूसरा करना था, लेट मी टेल यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली है. वो आपको इस तरह से मैच्योर कर देगी कि उसके बाद आपको जहां पे भी जाना है, कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके, आपको 2-3 साल 5 साल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके, एक्सपीरियंस लेके आप जिंदगी में जो चाहेंगे वो कर पाओगे. तो इंजीनियरिंग ये सोच के करो कि दिस इज माय पाथवे टू माय ड्रीम प्रोफेशन, जो भी है वो. एंड आई रीअश्योर यू कि आप बड़ी आसानी से वो काबिलियत भी पा सकोगे, वहां पे भी कामयाबी पा सकोगे. तो आपको अभी करना है, नहीं करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, एक सीट आपने रिजर्व की है, तो प्लीज उसका अपने लाइफ के लिए और सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए
बढ़िया से बढ़िया लाभ उठाइए, बिकम अ ग्रेट इंजीनियर, डू द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. What should be my goal? 40 to 60%. चलो कुछ तो किया, इंजीनियर बन गए. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. ये स्लाइड कुछ तो नहीं बता रही, पर आपका आज अपने आप को taking that Shatapauli, you can call your parents if you are staying on hostel, or if you are staying at your home, you can call your cousins, your relatives, your friends. तो थोड़ा सा वो भी रिक्रिएशन है, और ये टच रखना बहुत जरूरी है, ये सोशल कांटेक्ट बहुत जरूरी है. तो आप किसी एक इंसान को भी हर रोज फोन करके हेलो बोलते हो, उसके घर वालों के बारे में, उसके बारे में पूछते हो, तो ही विल ऑल्सो फील हैप्पी, यू विल ऑल्सो फील हैप्पी. तो वो कीजिए, एंड देन यू हैव टू गो अर्ली टू बेड. दिस इज अ टिपिकल रूटीन दैट यू हैव टू फॉलो इन योर इंजीनियरिंग. मैं आपको रीअश्योरेंस देता हूं, अब न सिर्फ हैप्पी रहोगे, न सिर्फ बड़ी खुशी से इंजीनियरिंग करोगे, बल्कि आप अच्छे से इंजीनियरिंग करोगे, आपको नॉलेज अच्छा आएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. सो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस रूटीन. और एक दो दिन में अगर इस रूटीन में कुछ बाधा आ भी गई तो कोई बात नहीं, कम बैक इन द सैडल, कम बैक ऑन द ट्रैक, और आप शुरू कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है. यस, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड लेट मी टेल यू, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस वेरी रिलीजियसली, वेरी सिंसियरली सिंस 1990. तो कितने साल हो गए अभी? 30 साल हो गए. गेट एग्जैक्टली 7 hours स्लीप, नॉट अ मिनट मोर, नॉट अ मिनट लेस. ये 7 घंटे आपके लिए बहुत जरूरी है सोना, सोने में बिताना, लेकिन नॉट मोर देन दैट. ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर. शाम में ज्यादा पानी नहीं पीना है आपको, तो मॉर्निंग में और पूरे दिन लगभग 5-6 बजे तक शाम के आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना जरूरी है. दैट विल कीप योर डाइजेशन परफेक्ट, that will keep your blood circulation excellent, that will make your the oxygen that you are consuming through your breath, and not only oxygen but all the vital elements, vitamins that you consume through your food to each and every cell of your body, वो अच्छे से पहुंच जाएंगे अगर आपने पानी ज्यादा पिया है और ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा है. Your skin will glow, you will look more beautiful, you will look more handsome. So ये आपको करना ही है. Yes, have breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. अब रात को खाना जितना कम खाओगे उतना अच्छा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना छोड़ दो, नहीं, थोड़ा सा खा लो पेट के लिए, रात की अच्छी नींद के लिए, वो भी जरूरी है. पर आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए, लंच मॉडरेटली हेवी, एंड डिनर बिल्कुल लाइट लेना चाहिए आपको. तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है. Do something of each, aerobic, stretching and strength exercises. तो आपको जॉगिंग करनी है या वॉकिंग करनी है, प्राणायाम करना है, उसमें आपका एरोबिक हो जाएगा. कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मसल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको करने हैं, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो, सूर्य नमस्कार हो, या पुशअप्स रहेंगे, डिप्स रहेंगे, जिसमें मसल की स्ट्रेंथ गेन होगी, साइज भी गेन होगा, पावर भी गेन होगी. ये सबके लिए जरूरी है. और ये आप हर रोज करोगे तो आप 40 के हो, 50 के हो, ना तो आप बूढ़े दिखोगे, ना तो बुढ़ापा महसूस करोगे. यू विल रिमेन यंग फॉर एवर. मुझे यकीन है, हंस रहे हो क्या, सारी कुछ नहीं मिलता उससे. हाँ, हाफ एन आवर क्यूम्युलेटिव में बोल रहा हूं, पूरे दिन में कोई इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपका फ्रेंड है, आपको मैसेज देना है, हाय भी बोलना है, कोई बात नहीं, पर आप कितना चैटिंग करोगे उसके साथ? 2 घंटा? डोंट वेस्ट टाइम लाइक दिस. इन मराठी देर इज वन ब्यूटिफुल पोएम, प्राप्त काल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा. म्हणजे द अवेलेबल टाइम इज लाइक अ बिग स्टोन,
and you have to carve beautiful sculptures out of that wonderful stone. अतिशय सुंदर ओळ आहे. त्यामुळे हा हातातला वेळ परत येणार नाही. दिस इज ओनली वन थिंग दॅट इज कम्प्लिटली इरिव्हर्सिबल. तुम्ही जगात बाकी काही करू शकता, उलट जाऊ शकता, यू कॅन गो बॅक टू युअर रूट्स इन एनी अदर एस्पेक्ट, बट यू कैनॉट गो बैक इन टाइम. मैं फिर से स्कूल जाऊंगा और अच्छी पढ़ाई करके अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट बन जाऊंगा, अभी ये मुमकिन नहीं. सो प्लीज स्पेंड योर टाइम with precaution. Read at least 5 pages of an improving book each day. There are books like टाटायन. हम लोग टाटा इंडस्ट्रीज को तो जानते हैं, पर उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, उनकी क्या फिलॉसफी रही है, कितनी ही बार उन्होंने अपनी जमीन, अपने जायदाद बेचकर अपने वर्कर्स की सैलरी की है, पता है आपको? कितनी सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोली है, कितने डोनेशंस देते रहते हैं. व्हाई दे आर ग्रेट. तो जैसे रामायण है वैसे टाटायन है. मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग टू दैट बुक. तो आप टाटायन पढ़िए. आप अगर बिल गेट्स की बायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है, अमिताभ बच्चन जी की बायोग्राफी है, पढ़िए किस तरह उन लोगों ने कष्ट उठाए हैं, इंसल्ट्स लिए हैं और आज वो कहां पहुंच गए. So these books are really improving, they are really inspirational, motivational. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई की किताब पढ़ो, वो तो करना है आपको, वो तो अपने रिवीजन में मैंने लिख दिया था, वो तो करोगे, पर कुछ दूसरा भी पढ़ो. और ऑनलाइन नहीं प्लीज. हाँ, अगर आप वो बुक देखते हैं कि वो 500 रुपए का है, 1000 रुपए का है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते और ऑनलाइन उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, तो बात अलग है. नहीं तो आप बुक खरीदिए या लाइब्रेरी से लीजिए. इवन अपने कॉलेज लाइब्रेरी में बाकी बुक्स भी बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप ले सकते हैं. तो कम से कम 5 पन्ने तो आप किसी अच्छे बुक पे पढ़िए. हैव योर फूड ऑन टाइम. रिमेंबर टू हैव योर फूड ऑन टाइम. आपको मील कभी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी में मरते वक्त तक हमारी लड़ाई सिर्फ एक बात के लिए है कि 3 वक्त या 4 वक्त का भरपेट खाना मिल जाए. क्यों इंजीनियर बन रहे हैं आप, क्यों और कुछ बनते हैं लोग, क्यों जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं? पैसा लेके फिर बाद में क्या करना है? आपकी बेसिक जरूरत है फूड. तो डोंट स्किप योर फूड. फूड के आगे किसी भी चीज की प्रायोरिटी नहीं है, ध्यान में रखिए आप. लर्न टू एंजॉय एवरीथिंग. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको इंजीनियरिंग भी एंजॉय करनी है, आपको सॉन्ग्स, मूवीज, बुक्स, आपकी जो भी हॉबीज है वो भी एंजॉय करनी है. हम लोग ट्रेक पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेकिंग क्लब्स है, वो एंजॉय करने हैं. स्पोर्ट्स एंजॉय करने हैं, आपको फूड एंजॉय करना है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हर मोमेंट जो आप काम कर रहे हो ना, वो एंजॉय कीजिए. मैं आपको भगवान की कसम खा के बोलता हूं कि मैं अभी जो है लेक्चर दे रहा हूं ना आपको, सच में खुद बहुत एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों से बात करना और उनसे एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो यू एंजॉय एवरीथिंग and you will enjoy life, you will enjoy moments, moments will turn into hours, hours will turn into days, days into weeks, weeks into year. 4 साल कैसे खत्म हो गए आपको पता नहीं चलेगा. Provided you don't despise any activity that you are presently undergoing. जो भी कर रहे हो बड़ी खुशी से करो, एंजॉय करो, उसमें आप बड़ी आसानी से मेरिट पाओगे. एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डू नॉट लाइक व्हाट यू आर डूइंग देन यू हैव टू आई एम सॉरी, मेड अ मिस्टेक समवेयर. इफ यू डोंट डू व्हाट यू लाइक यू विल हैव टू लाइक व्हाट यू डू. इफ यू डोंट डू व्हाट यू लाइक यू विल हैव टू लाइक व्हाट यू डू. तो ऐसी हालत में होनी चाहिए हमारी. जो हम कर रहे हैं एंजॉय करो, और जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिलता है दिन में वो भी करो, तो यू विल एंजॉय योर 4 years करियर. यस, अभी मैं थोड़ा सा रैशनल पे आ जाता हूँ. इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल तो काफी हो गया, अभी थोड़ा सा रैशनल सोचते हैं.
फॉर्मल स्टडीज इन इंजीनियरिंग, हमारा जो आज का टॉपिक है कि स्टडीइंग इंजीनियरिंग. सो वी आर कमिंग टू द टेल एंड ऑफ आवर स्पीच, एक्चुअली आवर डिस्कशन. फॉर्मल स्टडीज कैसे कर रहे हैं सेमेस्टर में? अटेंड ऑल लेक्चर्स. तो आप सरप्राइज हुए होंगे कि 11-12 में तो हम कॉलेज में जाते ही नहीं थे, और ये क्या हो गया अटेंड ऑल लेक्चर्स. पहली बात तो ये दिमाग में अपने अच्छे से डाल दीजिए कि 11th-12th की पढ़ाई और इंजीनियरिंग पढ़ाई में बहुत फासला है. देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन द टू लेवल्स. तो 11th-12th तो आप कोचिंग क्लास जाके या अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ के भी अच्छे से स्कोर लाके यहाँ इंजीनियरिंग में आए हो, लेकिन इंजीनियरिंग में वो काफी नहीं है. सेल्फ स्टडी भी आपको बहुत सारा करना है और उसके साथ साथ आपको लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं. लेट मी टेल यू, हमारे कॉलेज में एक भी लेक्चर ऑफ नहीं जाता. जब कोई टीचर किसी इमरजेंसी के लिए लीव पे है तो अपना लेक्चर एडजस्ट करके जाता है. क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए लेक्चर्स कितनी अहमियत रखते हैं. क्यों अहमियत रखते हैं? सीधी सी बात है भाई, आप इंजीनियरिंग में जाओगे, एक सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर एग्जांपल, आपको 10 अच्छे और 50 बकवास बुक मार्केट में दिखाई देंगे. 50 बकवास बुक्स, लेट मी टेल यू वेरी क्रूडली. और 10 अच्छे बुक भी मिलेंगे, और वो 10 अच्छे बुक रहेंगे ना, वो हजार पन्ने के रहेंगे. कब पढ़ोगे आप? 2 महीने में, 3 महीने में. तो टीचर क्या करता है आपका? उसने खुद इंजीनियरिंग की है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा है, तो उसने वो सब बुक पढ़ लिए हैं. उसमें से जो जिस्ट है, जो आपके लिए जरूरी है, आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपको जरूरी है, वो आपको देता रहता है आपके अपने क्लासेस में. तो क्यों ना आप उसका फायदा उठाए? आपको वो इन नटशेल एक कैप्सूल में डाल के हम पूरा विटामिन के मतलब विटामिन नॉलेज दे रहे हैं, तो आप क्यों ना उसका फायदा उठाए? तो प्लीज आप ये मत सोचना कि ये क्या है यार, ये स्कूल है क्या, हम लोग लेक्चर क्या अटेंड कर रहे हैं, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे. नहीं नहीं, ठीक है, घूमिए, कैंटीन में बैठे रहिए पूरे दिन या किसी मूवी को चले जाइए, पर लेट मी टेल यू, नुकसान आपका है उसमें. लेक्चर्स तो होते रहते हैं. मेक योर ओन नोट्स. सेल्फ स्टडी, अपनी पढ़ाई भी बहुत अहमियत रखती है. तो टीचर जो बोल रहे हैं या डिक्टेशन दे रहे हैं, आप अच्छे से लिख लो ताकि शाम को आप उसको रिवाइज कर सको. प्रिपरेटरी लीव में आपके पास कुछ रेफरेंस रहेगा कि हाँ अरे भाई ये पढ़ाया था, ये डेरिवेशन ऐसा है, ये फॉर्मूला ऐसा है. Get 100% involved while performing practicals, क्योंकि प्रैक्टिकल ही तो इंजीनियरिंग है. यहाँ पे लेबोरेटरीज में आप जो इक्विपमेंट देखेंगे, जब आप जॉब पे जाओगे ना, तो आपके लेबोरेटरीज में वही इक्विपमेंट रहेंगे. और वहां का सीनियर इंजीनियर आपको बोलेगा कभी देखा नहीं है क्या इसको, तुम्हारे कॉलेज में नहीं था क्या, कौन से कॉलेज से आए हो, इस तरह वो गाली देगा. यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, आप एक बात ध्यान में रखिए कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कुछ फालतू बकवास नहीं कर रहे हो आप. तो आप जो कर रहे हो यहाँ पे, वही आगे जाके साइट पे आप करोगे. और ये जो लोग बोलते रहते हैं ना कि साइट का इंजीनियरिंग मतलब रियल लाइफ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग और ये तुम्हारा कॉलेज का इंजीनियरिंग, दोनों का कोई कुछ संबंध नहीं है. दिस इज ऑल नॉनसेंस, लेट मी टेल यू. इस थ्योरेटिकल बेस के आधार पर ही आप वहां पे प्रैक्टिकल पर कर पाओगे. और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल में ध्यान नहीं देते हो तो वो करिकुलम का दोष नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप साइट पे गए तो आपको पता नहीं था वो इक्विपमेंट क्या है. अरे हाँ मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ था पर मैंने कभी हाथ नहीं लगाया. ऐसे नहीं होना चाहिए. डू योर एक्सपेरिमेंट. आपको फिर से करना है, आप टीचर को बोल दीजिए, लैब असिस्टेंट को बोल दीजिए, यहाँ पे आपको कोई ना नहीं बोलने वाला. लोग सिर्फ इतना बताएंगे कि भाई एक एप्लीकेशन दे दो, आपको हम एक शेड्यूल फिक्स करेंगे, आप उस वक्त आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो ये 11-12 जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बायोलॉजी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंट है. यही नॉलेज आपको बाद में जॉब में या बिजनेस में लगाना है, ये ध्यान में रखिए. आस्क आस्क एंड आस्क. कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप लेक्चर में पूछ लीजिए. हो सकता है कि टीचर आपको ये बोले कि अभी मत पूछना, एंड में पूछना, या कोई टीचर ऐसे भी बोलेंगे कि आप कभी भी मुझे रोक सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है. डिपेंड्स. पर पूछिए जरूर. अगर क्लास में पूछने के लिए आपको शर्म आती है थोड़ी सी,
तो बाद में उसको पर्सनली जाके पूछिए, पर पूछिए जरूर। रेगुलर सेल्फ स्टडी रिवीजन आपको करनी है। जो भी आपके जर्नल्स रहेंगे, राइटअप्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे, वो तो किसी रशियन, जर्मन या किसी यूएस वाले इशू पे तो नहीं रहेंगे, वो तो टेक्निकली रहेंगे। जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लिया है, उसी पे रिलेवेंट वो रहते हैं। तो वो आपको इमीडिएटली, आपको फौरन उसको कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। सो यू विल रिमेन अपडेटेड इन योर नॉलेज। आप उसको एक बार पीछे छोड़ दो तो वो बैकलॉग बढ़ता रहता है, वो पाइल अप हो जाता है। ऐसा मत करो। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, आपको ये अंग्रेजी कहावत पता होगी। स्टडी फ्रॉम गुड रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स विच हैव बीन रेकमेंडेड बाय योर प्रोफेसर्स। हम लोग आपको अच्छे से बुक का नाम बता देंगे, वो बुक हमारी लाइब्रेरी में रहेंगे। कृपया आपको और आपके पेरेंट को मेरा ये कहना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पैसा मत खर्च करो। कोई आपको बोल देगा अरे इंजीनियरिंग का एडमिशन हो गया, अभी ये 10 बुक तू मार्केट से खरीद ले। प्लीज डोंट डू दैट। इंजीनियरिंग करना मतलब पैसे लुटाना नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे बुक्स है, आप टीचर से पूछ लीजिए, आप लाइब्रेरियन से पूछ लीजिए। अगर वो किसी ने बोरो भी किया है तो आप फिलहाल फॉर द टाइम बिंग दूसरा ले लीजिए, बाद में वो आ जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। और काफी सारी कॉपीज भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि एक अच्छे बुक की एक ही कॉपी है। तो प्लीज डोंट स्पेंड बिकॉज योर सीनियर्स आर टेलिंग यू, दैट इज नॉनसेंस। अनलेस एंड अंटिल योर सब्जेक्ट टीचर्स टेल्स यू टू स्पेंड, आपको एक पैसा इधर का उधर खर्च नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर मनी, बाद में पछताओगे। डू नॉट, फॉर गॉड्स सेक, रीड एनी लोकली पब्लिश्ड टेक्स्ट बुक। ऐसे काफी सारे बकवास टीचर्स सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी में नहीं, दुनिया में, दुनिया के हर कोने में है, जो बकवास बुक्स लिखते रहते हैं। उसमें नॉलेज नहीं होता, उसमें सिर्फ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। और बच्चों को लगता है अरे सॉल्व्ड प्रॉब्लम मतलब जैसा स्कूल डेज में गाइड्स हुआ करता था, 21 अपेक्षित प्रश्न दिलेले, उत्तर दिलेली आहेत, ती पाठ करून परीक्षेला जायचं। अरे बाळांनो, इंजिनिअरिंग म्हणजे पाठांतर नव्हे। इंजिनिअरिंग म्हणजे समज, तुम्हाला समज आली पाहिजे, तुमचं लॉजिकल थिंकिंग, अनालिसिस वाढलं पाहिजे, हे लक्षात घ्या। सो प्लीज डोंट रिफर टू रबिश बुक्स, प्लीज रिफर टू द बुक्स recommended by your teachers only. Yes, so this was how you had to, study in semester, और सेमिस्टर भर आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपको हॉबीज भी चाहिए, रिवीजन भी चाहिए, ये सब मैंने बताया। अभी प्रिपरेटरी लीव्स हम लोग कोशिश करते हैं आपको कम से कम 15-20 डेज की मिले या 1 मंथ की मिले, हमारी कोशिश रहती है। सब कुछ कॉलेज के हाथ में नहीं रहता, यूनिवर्सिटी का एक अपना शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से हमें चलना ही पड़ता है। I have written 3 things to be done without fail in preparatory leave: study, study and study. तो प्रिपरेटरी लीव में आपको एक्सरसाइज तो करने हैं, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है, माइंड एंड बॉडी फिटनेस। आपको खाना भी तो अवश्य खाना है, आपको 7 घंटे की नींद भी लेनी है। लेकिन वो 15-20 दिन आप थोड़ा सा हॉबी बाजू में रखिए, सोशलाइजिंग बाजू में रखिए, और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगर ये रूटीन आपने फॉलो किया ना भाई और बहनों, मैं आपको यकीन से कहता हूं आप बहुत अच्छे मेरिट से आगे चले जाओगे। मेक अ डे वाइज टाइम टेबल, नॉट जस्ट टू डेकोरेट योर वॉल बट टू स्टिक टू इट। 15 दिन का अगर प्रिप्यू मिल गया, 5 सब्जेक्ट्स है, तो मतलब 3 पूरे दिन है आपको एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए। मान लीजिए एक आध सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, एक आध आसान है, तो 2 दिन और 4 दिन हो गया। लेकिन वो 2 ही दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, कोई आसान बात नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीपल लुक अप टू यू एज इंजीनियर्स, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। सो डे वाइज टाइम टेबल बनाइए, स्टिक टू इट। आपको ब्रीफ रिवीजन करनी है हर चैप्टर की, और उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ मेरी एग्जाम तो सर पे आई है, पर मैं पढ़ूं मतलब क्या करूं, किताब पढ़ूं या कुछ लिखूं। तो आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तो आपको एग्जैक्ट अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है। रेफरेंस बुक से आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे प्रिप लीव में,
सेमिस्टर की बात अलग है, जो टीचर आपसे करा लेते हैं वो आपको करना है, लेकिन प्रिपरेटरी लीव मतलब आपको नॉलेज तो गेन करना ही है, पर उसके साथ कॉम्पिटिटिव होना है आपको। अभी आपकी कंपटीशन है, अभी आपको मार्क्स पाने हैं, नॉलेज तो आपने पा लिया सेमेस्टर में, तो कॉम्पिटिटिव होने के लिए आपको जरूरी है कि यूनिवर्सिटी पेपर उठा लो अपने सब्जेक्ट का, और शुरू से एंड तक वो ऑप्शन विप्शन भूल जाओ, सब सब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बुक में देख के सॉल्व कर लो, पहले कोशिश करो बगैर देखने की, बाद में देखकर सॉल्व करो। इस तरह आपको पढ़ाई करनी है प्रीप लीव में। यस, आई एम नियरली कमिंग टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, अपना वक्त भी अभी होने को आया है। सिंपल फॉर्मूला फॉर हैप्पी लाइफ आई हैव रिटन, कंपार्टमेंटलाइज योर टाइम। आप किसी भी ऑफिस में जाओ, हमारे स्टाफ रूम में भी आओ, तो आपको दिखेंगे कि क्यूबिकल्स है, कंपार्टमेंट्स है, दो टीचर्स बाजू बाजू में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज आप घर में रखते हो तो उसके अलग अलग खाने होते हैं, आपको पता है कि दाल चावल एक जगह होगी, फिर आपका जो धनिया मिर्च वगैरह रहेगा वो एक दूसरे खाने में रहेगा, बिस्कुट्स फरसाण ये सब अलग खाने में। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसका अगर मिक्सचर हो गया तो वक्त पे कुछ नहीं मिलता। आपका टिफिन जो है हर रोज का लंच का, उसमें भी खाने रहते हैं ना। ऐसा हो सकता है क्या कि दाल चावल आपकी सब्जी आपकी रोटी सब एक ही डब्बे में डाल के दे दिया आपको? क्या टेस्ट आएगी उसको? तो अगर हर जगह दुनिया में खाने रहते हैं हमारे व्यवहार में इस्तेमाल में, तो अपने दिमाग में खाने क्यों नहीं है, अपने थॉट्स में खाने क्यों नहीं है? तो मैं ही आपको बता रहा हूं कि कंपार्टमेंट्स कीजिए। अक्सर स्टूडेंट्स का क्या होता है पता है, आप जब एग्जाम दे रहे होते हो तो आप ट्रैक की सोचते हो कि अरे मुझे जैसे छुट्टियां आ जाएगी मैं कैसे ट्रैक करूंगा। तो आप जब पेपर लिख रहे हो तो आपका मन घूम रहा है जंगलों में, आपका मन घूम रहा है ट्रैक पे, ट्रेल्स पे। तो क्या होता है, आपका पेपर स्पॉइल होता है, वहां पे कंसंट्रेशन है नहीं आपका। उसके बाद क्या होता है, दूसरी बात तो और मजे की है। आप ट्रैक पे तो जाते हो, पर वहां आप क्या सोचते हो कि अरे वो पेपर मेरा गंदा गया, मुझे 40 भी मिलेंगे या 39 पे अटक जाऊंगे या 38 पे अटक जाऊंगा। 40 पासिंग आपको पता रहेगा, प्रोफेशनल कोर्स है, 40% का पासिंग है अभी। तो आप वो सोच में मायूस हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो, तो आप ट्रैक भी एंजॉय नहीं करते। तो ना तो आप पढ़ाई एंजॉय करते हो, ना तो आप ट्रैक एंजॉय करते हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एक्टिविटी आप जिस मोमेंट में कर रहे हो उसी मोमेंट में रहो, पास्ट में मत जाओ, फ्यूचर के ख्वाब मत देखो, इधर उधर इमेजिनेशन में मत जाओ। जो एक्टिविटी आपका जो फोकस है, जो आप कर रहे हो, उसको ध्यान से और पूरी लगन से और एंजॉय करते हुए करो। आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, आप ट्रैक भी अच्छा एंजॉय करोगे। सो ट्राई टू कंपार्टमेंटलाइज योर लाइफ। रिलेशंस में भी घर वाले अलग है, फ्रेंड्स अलग है, टीचर्स अलग है, सो आपके कंपार्टमेंट्स क्लियर होने चाहिए। सो डू इट, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट। लास्टली, ध्यान में रखिए, द बॉटम इज ऑल क्राउडेड बट देर इज ऑलवेज सम रूम एट द टॉप। क्या मतलब है इसका? कि आपका नॉलेज अच्छा हो, कॉम्पिटेंस अच्छा हो, मेरिट अच्छा हो, तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे। तो ये मत सोचना कि मेरी ब्रांच सिविल है, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, जॉब रहेंगे या नहीं रहेंगे। जॉब ब्रांच को नहीं रहते मेरे प्यारो, जॉब रहते आपके मेरिट को, जॉब रहते आपको, जॉब इंसान को मिलता है, ब्रांच को नहीं मिलता। तो आपका मेरिट अच्छा है, आपको जॉब जरूर मिलेगा, आपका बिजनेस जरूर होगा, आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। देयर इज ऑलवेज सम रूम एट द टॉप, ये ध्यान में रखिए। और एंड में एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, द प्रॉब्लम विद द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन द रेस यू आर स्टिल अ रैट। रैट रेस जीत के क्या किया आपने? आप रैट ही रह गए, शेर तो नहीं बने। तो रैट रेस में मत पड़ो। 100 लोग जिस दिशा में जा रहे हैं वही मुझे करना है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, नॉनसेंस। आप कुछ अलग से करो, वही चीज आप अलग से करो, कुछ अलग देने की कोशिश करो, इन्वेंट करो। इन्वेंशन का मतलब ये नहीं कि कुछ चीज ही बनानी है आपको। अगर पढ़ाई की भी कुछ कुछ प्रोसेस, कुछ तरीका आपने नया लगाया, आत्मसात किया,
इमेजिन किया, तो वो इन्वेंशन ही है। अलग से करो, आप आगे चले जाओगे। यू विल नॉट एंड अप बिकमिंग अ रैट, यू विल बिकम अ लायन। Okay, so thank you very much, and I am so happy that I could communicate with you whatever few things that I, wanted to share with you, and I'm so happy कि आपने बड़ी पेशेंस से ये सब सुन लिया, मेरे साथ रहे आप पूरे 1 घंटे के लिए। Some feedbacks I am getting, so I would like to personally answer. Uh, Lots of thank yous. I'm so happy. We enjoyed your lecture. Thank you so much. And ये टॉम क्रूज कौन है भाई, उसका लाइन रहेगा शायद। सर, यू वेर इन फुलपाक्रू सीरियल, यस, थैंक यू। We too are enjoying your lecture. Thank you so much. Thank you, dear guys. I am seeing that you are all very responsive and you are all very active. You are all very agile. We really enjoyed, sir. Thank you so much. A lot of thanks to you. अभी मैं क्या कहूँ आपको? I am overwhelmed with your feedback here. Such a nice lecture. Thank you, beta. Thank you so much. Thank you. Thank you for amazing lecture. Thank you so much. And कुछ क्वेश्चंस है आपको तो पूछ लीजिए about the routine of engineer, जैसा कि मैंने बताया। If you have any question, please unmute your mic and you can speak to me. Very motivating, very excited to meet you in person. Even I am very excited looking at your feedback. I'm sure I'm going to look forward to meet you and embrace you. Much positivity. Great, Shweta. Always be positive. And you never know what surprise, what very pleasant surprise the life has in store for you. और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि the night is always darkest just before the dawn. तो ये बात आप ध्यान में रखिए। Very satisfied with all stuff. So yes, that is something I can definitely reassure you, क्योंकि मैंने आज तक 8-10 कॉलेजेस में काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले मैं सिम्बायोसिस में था, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोग जानते हैं। और सिर्फ 3 महीने में सिम्बायोसिस छोड़ के, उनकी सैलरी छोड़ के, उनका वहां का स्टेटस छोड़ के, पूरा मार्बल और ग्रेनाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के मैं वहां से भाग के PCCOR में आया हूं। Just because for me, college is not about infrastructure, college is not about marbles and granites, but the college is about the faculty there and the college is about students there. अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है तो आप वो मार्बल पे बैठ के, ग्रेनाइट पे बैठ के क्या करोगे? यस कविता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन सिखाई जाएगी। आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और फैकल्टी से आप जरूर बात कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते रहते हैं। बहुत सारे मतलब इतने सारे कि कई बार स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। वो बोलते कि सर अभी नहीं हो रहा है, कॉलेज की पढ़ाई ये वो सब हमसे नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर होता है। तो आपको जो भी चाहिए आप एक एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी ही फैकल्टी कॉम्पिटेंट है और वो वैल्यू एडेड प्रोग्राम आपको दे रही है तो उसके डेफिनेटली आपको फीस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर बाहर से कोई इंसान या एजेंसी हम लोग बुलवाते हैं तो उनकी कुछ नॉमिनल फीस हमें भरनी पड़ती है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उसमें भी काफी सारा ट्रस्ट आपको हेल्प करता है कि फीस कम हो, जैसे सब्सिडाइज्ड हो, ये सब चलता रहता है। Are the subjects opted by the college going to change for second semester? Yes, definitely. ये 11-12 जैसा नहीं है बेटा कि आपको 11th में मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मराठी, हिंदी, इंग्लिश है तो 12th में भी वही है, ऐसा नहीं रहता। आपके फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट और सेकंड सेम के सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग है। थर्ड सेम में तो आप डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां पे तो सभी अलग रहेगा। तो हर सेमेस्टर में आपको जो 5 सब्जेक्ट मिलेंगे या 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट अलग है।
अभी आपको पता रहेगा कि इसको अचीवमेंट क्यों बोलते हैं, पता चल रहा रहेगा। तो 4 इयर्स में आप 40 अलग अलग सब्जेक्ट्स मास्टर कर लेते हो, क्या बनोगे आप, सोचो। विल सिलेबस बी रिड्यूस्ड, मेरी समझ में ना यार इसका क्या मतलब है। कैन आई लर्न प्रोग्रामिंग वाइल, यस 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 यू कैन, व्हाई नॉट, दैट इज योर चॉइस। आपको चाहिए और आपको वक्त मिल रहा है तो आप कोडिंग जरूर सीख सकते हो, और आपको चाहिए तो कॉलेज में भी वो फैसिलिटी आपको दी जाएगी। वैसे हर ब्रांच को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के अंडर काफी सारा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल्स, कोडिंग ये सब भी सिखाया जाता है। शायद ट्रेनिंग प्लेसमेंट का लेक्चर भी आपका हुआ होगा या प्लान रहेगा, तो वो लोग भी आपको सब बता देंगे। लैपटॉप कंपलसरी नहीं है। आपको कंपलसरी क्या है मैं बता देता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको खरीदना है, वो भी कैसियो का खरीदिए। वो भी मेरे ख्याल से जो मॉडल है, देखिए एक पुराना मॉडल है 991 ES करके है, और अभी नया मॉडल आया है, यस यस, टाइम अप हो रहा है अपना, 991 MS करके है। तो उसमें से कोई एक कैलकुलेटर आपको लेना चाहिए। सॉरी गाइज, अपना दूसरा लेक्चर अभी शुरू होने को है। शायद मैंने अपना लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा ही प्रोलॉन्ग किया, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए वक्त कम मिल रहा है। प्लीज 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 अलाउ मी टू स्टॉप हियर, क्योंकि अगले अपने जो स्पीकर है वो भी ऑनलाइन है, तो वी आर गेटिंग लेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। So thank you so much, and I'm very happy to meet you, and let's hope to meet you soon in classes, and that too offline. So thank you, good day, and all the very best wishes. Thank you.